But it was all chinked up with mud and the great huge logs that was in the old house. I thought that house would stand for hundreds of years. लेकिन ये सारा घर गारे से लिपा हुआ था और बड़े बड़े शतीर जो इस पुराने घर में थे, उनके बाइस मैं सोचता था कि ये घर सैकड़ों साल तक कायम रहेगा। But you know, today where that house stood is a housing project. It's so much different. Everything's changing. But लेकिन आप जानते हैं कि जहाँ ये घर था वहाँ आज एक रिहायशी मंसूबा बन चुका है। ये बेहद मुख्तलिफ है, हर चीज तब्दील हो रही है। लेकिन now I used to see my father. He was rather a short, stocky man, very strong. And he was one of the strongest little men that I knew of. मैं अपने वालिद को देखा करता था कि वो एक पस्त कद, गठे हुए जिस्म के मजबूत आदमी थे। जितने पस्त कद आदमियों को मैं जानता था, उनमें वो मजबूत तरीन थे। I met Mr. Coots, a fellow that he used to work with in the logs. He was a logger. And about a year ago, and Mr. Coots is a very good friend of mine, a deacon in the First Baptist Church. मैं मिस्टर कुट्स से मिला, जिनके साथ मेरे वालिद लकड़ी काटने का काम करते थे, क्योंकि वो लकड़ी काटने वाला था। और तकरीबन 1 साल गुजरा। मिस्टर कुट्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च के डीकन हैं। And he said, Billy, you ought to be a real powerful man. And I said, no, I'm not, Mr. Coots. He said, if you took after your daddy, you would be. उसने कहा, बिली, तुम दर हकीकत एक ताकतवर आदमी हो। और मैंने कहा, नहीं जनाब, मैं ऐसा नहीं हूँ। उसने कहा, अगर तुम अपने बाप पर जाते तो तुम वैसे ही होते। He said, I seen that man weighing 140 pounds load a log on the wagon by himself. It weighed 900 pounds. He just knew how to do it. He was strong. उसने कहा, मैंने उस आदमी को देखा था जिसका 140 पाउंड वजन था। वो 900 पाउंड वजनी लकड़ी को खुद ही रेड़े पर चढ़ा लेता था। वो इस तरीके से जानता था कि उसे कैसे चढ़ाना है। वो बहुत मजबूत आदमी था। I'd seen him come into the place to wash and get ready for dinner when Mother would call him. And we had an old apple tree out in the front yard. And then there was 3 or 4 small ones along towards the back. मैंने देखा था कि जब वालदा उन्हें बुलाती थी तो वो रात के खाने के लिए मुंह हाथ धोने और तैयार होने की जगह पर आ जाते थे। हमारे घर के सामने सेन में एक पुराना सेब का दरख्त था और पिछली जानिब 3 या 4 दरख्त थे। And right in the middle tree there was an old looking glass had been broke, mirror, large one, and had been tacked on the side of the tree with some nails bent in, kind of like what some of you carpenters listening would call coat hangers. और ठीक दरमियान वाले दरख्त पर एक बड़े टूटे हुए आईने का टुकड़ा लगा हुआ था, जिसे कील ठोककर दरख्त के साथ लटकाया गया था। ये उसी तरह था जिसे बढ़ई लोग कोट हैंगर कहते हैं। It had been bent in to hold the glass in its place. There was an old tin comb. How many ever seen an old tin, the old-fashioned tin combs? I can just see it. उन्हें इस तरह मोड़ दिया गया था कि शीशे को फंसाए रखें। वहाँ एक पुरानी टीन की कंघी थी। आप में से कितनों ने कभी पुरानी टीन की कंघी देखी है, यानी पुराने तर्ज की टीन की कंघी? मैं उसे अब भी देख सकता हूँ। And then there was a little wash bench, just a little board with a little slanting leg beneath it tacked against the tree. A little old half-sulfur pump there that we pumped the water out and we washed at this old tree. और फिर वहाँ मुंह धोने के लिए एक छोटा सा बंच था। ये बस एक कश्ती थी जिसके नीचे एक डलवान टांग थी और ये दरख्त के साथ लगा हुआ था। और एक पुराना छोटा सा नलका था जिसे चलाकर हम पानी निकालते और उस दरख्त के नीचे बैठकर मुंह हाथ धोते थे। And Mama used to take meal sacks and make towels. Anybody ever use a meal sack towel? Well, I'm sure I'm feeling home now. और हमारी वालदा आटे के थैलों से हमारे लिए तौलिए बनाती थीं। क्या कभी किसी ने आटे के थैले का तौलिया इस्तेमाल किया है? ठीक है, मुझे यकीन है कि अब मैं खुद को घर में महसूस कर रहा हूँ।
And those big old rough towels, and when she'd give us little kiddies a bath, she'd feel like she was rubbing the hide off every time she rubbed. And I remember that old meal sack, and she'd pull some of the strings out and make little tassels to kind of decorate it up. वो बड़े खुरदरे तौलिए होते थे, और जब वो हम छोटे बच्चों को नहलाती थी तो वो लगता था कि हर रगड़े के साथ हमारी खाल ही उतार ले जाएगी। और मुझे आटे का वो थैला याद है, वो उनमें सजावट का पहलू पैदा करने के लिए कुछ धागे निकाल देती थी और वो झालर से बन जाते थे। How many ever slept on a straw tick? Well, I will say. How many ever know what a shuck pillow was? Well, Brother Glover, I'm at home now, sure enough. कितने लोग हैं जो घास के गद्दे पर सोए हैं? ठीक है, मैं ये कहूँगा कि कितने लोग जानते हैं कि कभी भूसे का तकिया भी होता था। ठीक है भाई ग्लोर, अब मैं यकीनी तौर पर घर में महसूस कर रहा हूँ। Straw tick, well, it hasn't been too long since I just come off of one. It was, it's good sleeping, cool. ठीक है, अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि मैंने घास के गद्दे का इस्तेमाल छोड़ा है, और ये इस पर बड़ी अच्छी और मीठी नींद आती है। Then in the winter time they take the old feather bed and lay on it, and then have to put a piece of canvas over the top of us to cause the snow blowed in the cracks in the house, where the old clapboard shingles would turn up, and the snow would sweep through it. And I can remember that very well. और फिर मौसम सरमा में परों का बिस्तर बिछाकर हम सोते थे, आप जानते हैं, और फिर छत के ऊपर हमें तरपाट डालनी पड़ती थी क्योंकि दरवाजों से बर्फ गुजरकर अंदर आ जाती थी। और आप जानते हैं कि जहाँ पर पुरानी तख्तियाँ ऊपर को मुड़ी हों, आप जानते हैं कि उनमें से बर्फ अंदर घुस जाती है। और ये सब कुछ मुझे याद है। And then Pop used to have a shaving brush. Now this is going to get you. It was made out of corn shucks. A shaving brush with corn shucks. और वालिद साहब एक शेविंग ब्रश भी इस्तेमाल करते थे। अब मैं आपको बताऊंगा, ये मकई के बालों का बना हुआ था। ये शेविंग ब्रश मकई के बालों के साथ बना हुआ था। He'd take mother's old lye soap that she had made, fix it up and put it on his face with this corn shuck brush and shave it with a big old straight razor. And on Sunday, he'd take the pieces of paper, stick around his collar, the wore celluloid collars, and put it around the collar like this to keep the lather from getting on his shirt collar. Did you ever see that done? Why, my. और मेरी वालदा के तैयार करदा साबुन को लेते जो वो बनाती थीं और मकई के बालों से बने हुए ब्रश से अपने चेहरे पर लगाते और एक बड़े सीधे उस्तरे से अपनी शेप बनाते, और इतवार को वो कागज के टुकड़े अपने कॉलर के गिर्द चपकाते कि शेव करते वक्त कमीज के कॉलर को जाग न लगने पाए। क्या आपने कभी ये काम देखा है? क्यों? ओ मेरे खुदाया। I remember a little old spring down below where we used to go get a drink of water and get our water out of an old gourd dipper. How many ever seen a gourd dipper? मुझे याद है कि वहाँ एक छोटा सा चश्मा भी था जहाँ से हम पानी पीने जाया करते थे और अपने लिए एक पुराने कद्दू के प्याले से पानी निकाला करते थे। आप में से कितनों ने कभी वो पुराना कद्दू का प्याला देखा है? Well, how many of you is from Kentucky anyhow? Well, just look here at the Kentuckians. ठीक है, यहाँ केंटकी से आए हुए कितने लोग हैं? वाकई ठीक है, तो फिर मैं जरा अहले केंटकी को देखना चाहता हूँ। Well, I'm right. I thought it was all Okies and Arkies out here, but look like Kentucky's moving in. Well, they did strike oil in Kentucky a few months ago, so maybe that's some of them's coming this way. ठीक है मेरे अजीजों, मैं समझता था कि यहाँ ओकाइस और अकाइस ही के लोग हैं, लेकिन नजर आ रहा है कि केंटकी से भी लोग आए हुए हैं। ये ठीक है। आप जानते हैं कि चंद माह पहले उन्होंने केंटकी में तेल की हड़ताल की। शायद उनमें से कुछ लोग इधर आ रहे हों। And then I remember when Dad used to come in and take his wash for dinner, he'd roll up his sleeves, them little short stubby arms, and when he'd pull up his arms to wash, throw the water up on his face, the muscles just wadded in his little arms. मुझे ये भी याद है कि जब मेरे वालिद घर आते और रात के खाने के लिए हाथ मुंह धोते वक्त
वो अपने उन छोटे मजबूत बाजुओं से अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा लिया करते थे। And I said, you know, my daddy will live to be 150 years old. He was so strong, but he died at 52. See? Here we have no continuing city. That's right. We cannot continue. और मैं कहा करता था, आप जानते हैं कि मेरे वालिद 150 साल तक जिंदा रहेंगे। बस वो मजबूत आदमी थे, लेकिन वो 52 साल की उम्र में कूच कर गए, समझे, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है। ये सच है, हम कायम नहीं रह सकते। Now let's take a little trip, all of us. There's every one of you here that has a life story, just as I do. And it's good to stroll down memory's lane once in a while, don't you think so? अब आए, हम में से हर एक अपनी जिंदगी का छोटा सा सफरनामा ले। मेरी तरह आप में से भी हर शख्स की जिंदगी की एक कहानी है, और थोड़ी देर के लिए यादाश्त की गली में चले जाना अच्छा होता है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? Just go back and let's all go back for a while, back to similar experiences as a little children. आइए जरा वापस चलें। आइए थोड़ी देर के लिए सभी वापस चलते हैं, बचपन के ऐसे तजर्बात पर वापस चलते हैं। And now the first part of the life story, I'll just give it a little touch because it's in the book and many of you have the book. और अब ये जिंदगी की कहानी का पहला हिस्सा होगा। मैं इसका थोड़ा सा जिक्र करूंगा क्योंकि ये एक किताब में मौजूद है और वो किताब आपके पास है। I was born in a little mountain cabin way up in the mountains of Kentucky. They had one room that we lived in, no rug on the floor, not even wood on the floor. It was just simply a bare floor. And a stump, top of a stump cut off with 3 legs on it, that was our table. मेरी पैदाइश केंटकी के पहाड़ों में एक कोहस्तानी घर में हुई। वहाँ एक कमरा था जहाँ हम रहते थे। फर्श पर कोई कालीन या यहाँ तक कि कोई लकड़ी का टुकड़ा वगैरह भी नहीं लगाया गया था। ये बिल्कुल एक नंगा फर्श था और एक दरख्त का कटा हुआ कंधा जिसकी 3 टांगे थी। ये हमारी मेज थी। And all those little Branhams would pile around there and out on the front of the little old cabin and waller down, looked like where a bunch of possums had been wallering out there in the dust, you know, all the little brothers. और तमाम छोटे ब्रहनम बच्चे इसके चौगिर्द जमा हो जाते थे, और जब तमाम छोटे छोटे भाई कोठड़ी से बाहर निकलकर खेल रहे होते थे तो ऐसे लगता था, आप जानते हैं, कि जैसे गिलहरियों का कोई ग्रोह मट्टी में खेल कूद मचा रहा हो। There was 9 of us and one little girl, and she really had a rough time amongst that bunch of boys. We have to respect her yet today from the things that we did in those days. She couldn't go with us anywhere. We'd run her back. She was a girl, so she couldn't take it, you know. हम 9 भाई थे और एक छोटी बहन थी। इतने सारे लड़कों के दरमियान उसका वक्त बहुत मुश्किल गुजरता था। जिस तरह हम उसे तंग किया करते थे, अब उसके बरक्स हम उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। वो लड़की थी, वो हमारे साथ कहीं भी नहीं जा सकती थी क्योंकि हम उसे वापस भगा देते थे। आप समझ सकते हैं कि वो कोई मौका नहीं पा सकती थी। So we had, and all remember that back behind the table we had just 2 chairs, and they were made out of limb bark, just old hickory saplings put together, and the bottom of them laced with hickory bark. Did anybody ever see a hickory bark chair? Yeah. बस हम और तमाम, मुझे याद है कि उस मेज के पीछे सिर्फ 2 कुर्सियां थीं और वो भी टहनियों की बनी हुई थीं। ये बस 2 शाकी सांगियों को मिलाकर बनाई गई थीं और पेंदे को दरख्त की छाल से बुन दिया गया था। क्या किसी ने दरख्त की छाल की कुर्सी देखी है? जी हाँ। And I can hear Mama yet. Oh, later on when we got into a place where she could have a wooden floor with those babies on her lap like this and rocking that old chair, just bang diddy bang diddy bang on the floor. और अब भी मैं अपनी वालदा की आवाज को सुन सकता हूँ। बाद में जब हम एक दूसरी जगह मुंतकिल हो गए जहाँ लकड़ी का फर्श था और वालदा की गोद में बच्चे होते थे
और वो उस पुरानी कुर्सी को फर्श पर घसीटती थी तो धड़ धड़ की आवाजें आती थीं। I remember to keep the little ones from going out the door when she would be washing or something, she'd lay a chair down and turn it kind of cat-a-cornered across the door to keep the little ones from getting out when she had to go to spring to get water and so forth. मुझे याद है कि जब वो धुलाई वगैरह का काम करने के लिए जाती थी तो कुर्सी को खींचकर दरवाजे के बीच में फंसा देती थी ताकि छोटे बच्चे घर से बाहर ना निकल सकें, और इसी तरह जब वो चश्मे से पानी लेने या ऐसे और काम करने जाती थी तो ऐसा ही करती थी ताकि छोटे बच्चे घर से बाहर ना जा सकें। And mother was 15 years old when I was born. Dad was 18. And I was the first of the 9 children. और जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त माँ की उम्र 15 साल और बाप की उम्र 18 साल थी और मैं 9 बच्चों में पहलौठा था। And they told me that the morning I was born, now we was very poor, just the poorest of poor. And we did not even have a window in this little cabin. It had like a little wooden door that you open. I doubt whether you ever seen anything like that. और मेरे वालिदैन मुझे बताते हैं कि जब मैं उस सुबह पैदा हुआ हम बहुत ही गरीब थे, बल्कि गरीबों में से भी गरीब तरीन थे, और हमारी इस छोटी कोठरी में कोई खिड़की तक ना थी। इसमें लकड़ी का एक दरवाजा ही था जो आप खोल सकते थे। मुझे शक है कि आपने ऐसी चीज कभी देखी भी नहीं होगी। A little wooden door that opened instead of a window. You keep it open in the daytime, you closed it at night. We couldn't turn on the electric lights or even burn kerosene in those days. We had what you call a grease lamp. लकड़ी का छोटा सा दरवाजा था जो खिड़की की जगह खुलता था। हम उसे दिन के वक्त खुला रखते थे और रात के वक्त बंद कर देते थे। हमारे पास बिजली की रोशनियां नहीं थी, हत्ता कि उन दिनों में मट्टी का तेल भी नहीं जलाते थे, बल्कि हमारे पास वो चिराग था जिसको आप चर्बी वाला चिराग कहते हैं।